Hello everyone, my name is Jyoti Upadhyay and welcome to Rooted, a channel dedicated to provide quality guidance for history optional. Now, this video is part of the core series and we also have a parallel series running in which I teach you how to write a history optional answer through PYQ of 2025, right? So do check out the playlist and let us proceed. Now, in the previous video, we had covered about archaeological sources, right? We are doing like topic by topic. So the first topic in the syllabus is sources of history. So we have already covered archaeological sources. Now today we are going to do about literary sources. And the next video that is going to come is going to be about Vedas, Puranas, Dharma Shastras, Sangam literature as sources of history, and that will be followed by foreign accounts as sources of history, right? So let us begin. Now, before I begin, I would like to show you a few a few PYQs, right? So that you have an idea of what exactly is asked from this topic. Okay, so for example, if you see question number 2A, this suggests, do you agree that archaeological evidence often helps in better understanding of literary sources? तो ये क्वेश्चन पढ़ के हमें क्या समझ में आ रहा है? This shows that you have to write about the merits of archaeological sources and the limitations of literary sources. These have to be the main focus. अब आंसर राइटिंग क्या है? आंसर राइटिंग इज एन आर्ट. यू जस्ट कांट गो एंड राइट मेरिट्स ऑफ आर्कोलॉजिकल सोर्सेज, लिमिटेशंस ऑफ लिटरेरी सोर्सेज. You have to write a 15 marks answer integrating both of them. So in the answer writing series, definitely we are going to cover this. ठीक है. Next type of question that comes from this topic is foreign accounts as a source of ancient Indian history. So I told you already that we are going to cover this in the next to next video. Next is Puranas were innovative genre of literature to popularize and revive the Vedic religion. Again, in the next video, we are going to cover this thing, right? So once we got an idea about the kind of questions that are asked, let us cover what are literary sources, right? Now, understand this thing. As a layman, when somebody says literary sources, what do you understand? The perception that comes to your mind is that anything that is a written record is a literary source, right? Now, this assumption is partly correct. The reason it is partly correct is because literature as such is composed of, literary sources is composed of two things. One is text and the other one is literature, right? Now, what is the difference between text and literature? Text is any composition that consists of words. For example, if I say, is am the teacher, hello, so it doesn't exactly make sense, but it is a composition involving texts, so it might be part of literary sources. Similarly, for example, if you have some songs, we have some folk songs. So if there are some folk songs, some folk stories that are not written down, but they are oral in character, that means what? They contain text, they contain words, just that they are not written down. But since they contain words, we will actually consider them to be a part of literary source, right? So literary source consists of texts and it consists of literature. Now, it is very difficult to define exactly what literature is. See, literature in general, it is said that it is a composition of words. As text, it is a composition of words. Literature is a composition of words where you know, it starts making, it expresses things in a very comprehensive, in a very creative way. Means, when I told you about is, am, the, teacher, hello, it did not make any sense. But if I say, hello, I am a teacher, right? So this is kind of, it's an expression, it's making sense. So this kind of can be said to be a part of literature, right? So it's actually very difficult to define exactly what a literary source is, but this is the basic essence of literary sources, right? I hope it is clear till now. So here what I have written is, so a literary source is not always written, it can also be oral. And it is very important to understand this because, you know, when we talk about written evidences, most of the written evidences of the ancient times were written by influential men, for influential men, that is written by the elites for an audience which was also an elite,
right? For example, if we see about the various dramas of Kalidas, who was the audience, what is the core topic which it deals with? It's mostly about the elites, it's mostly about the kind of lifestyle of the upper classes. It's mostly focused on the upper classes. We have to read that in layers to understand the history of the marginalized section or the lower, so-called lower classes, right? Understood. So in this case, folk songs, they are much more expressive of subaltern history, that is history from below, compared to texts, right? So having oral sources as part of literary sources is very important. Why it is important to understand this? Because if you see the kind of questions that UPSC is asking, if you just mug up notes, you will not be able to get 300 plus marks. If you want to get 300 plus marks, you will have to do little reading. You will have to understand things in a way that will differentiate your answer from a person who has just read the notes available in the market, right? You also have to include the name of historians. At the end, I'm actually going to, at the end of this video, I'm going to give you the name of important historians related to this topic. So it is very important to understand things, right? So just don't go by mug up, understand things, do your own readings. For example, this part I would suggest you go and first you see the videos, then you go and read Upinder Singh, right? And I'm also planning to make a chapter wise summary, like page by page or chapter wise summary of Upinder Singh, that I will upload every Sunday, right? So make sure to subscribe to this channel. It's going to be, I hope it is beneficial, right? Okay, next we move on to the types of literary sources. See, when I talk about types of literary sources, this is kind of, there cannot be a singular agreement over this. The reason being, there can be several types, and most of these types overlap each other. For example, broadly, if I tell you about the types of literary sources, we can say it is religious literature and secular literature. Secular literature can further be broken down into maybe texts that deal with art and culture, texts that deal with statecraft, texts that deal with stories, or maybe chronicles, or what can we say about this biographies. Okay, so it can be several things together. So at times what happens is we have divided into 6 categories for our understanding, but it can be overlapping in several aspects. For example, if you see secular literature, right? Can I say that scientific and technical works is not part of secular literature? No, obviously. If you see, for example, Varha Mihir's Brihat Samhita, that talks about astronomy, that talks about planets and so on. This definitely is secular literature. So why to create a separate distinction as secular literature, right? So it is mostly for making it easier for us to read that we are dividing it into several categories, right? So I have divided it into 6 main categories. Now, it is important to understand this because each category gives you a different type of information. For example, if you see about religious literature, अच्छा, to understand this thing कि कौन से literature से हमें क्या पता चलता है history में, what is the historical importance of that literature, always keep in mind that who wrote it and for whom this book or this composition was written. Understood? So that will help you reach to your own idea about what is the various source of information that can be extracted for historical use from this particular source, right? So if we see about religious literature, for example, we have Vedas. In the next video we are going to see about Shruti and Smriti. What is Shruti literature, what is Smriti literature? ठीक है, Vedas are part of Shruti literature. Shruti मतलब क्या है? अच्छा ठीक है, I'm going to say you in the next video, but for now यहाँ पे वेदास को हम श्रुति लिटरेचर इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज इट इज अज्यूम्ड दैट वेदास वर रिवील्ड बाय द गॉड्स टू द ऋषिज, ठीक है, उनको बोला गया था, ठीक है, व्हेन दे वर इन अ स्टेट ऑफ मेडिटेशन. तो वो क्या है? श्रुति. एंड स्मृति क्या है कि दीज ऋषिज देन पास्ड इट ऑन जनरेशन बाय जनरेशन टू देयर डिसाइपल्स. सो ऑल द अदर रिलीजियस टेक्स्ट दैट वी फाइंड मोस्टली दे बिलोंग टू द अदर वंस, दे बिलोंग टू दिस स्मृति लिटरेचर, ठीक है. डिटेल्स में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. फॉर नाउ दीज आर बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स दैट यू शुड नो. सो इसमें क्या है? वी हैव वेदास,
वी हैव 4 पार्ट्स ऑफ द वेदास. 4 पार्ट्स ऑफ द वेदास क्या है? संहिता हो गया, ब्राह्मणा हो गया, अरण्यका, उपनिषद, एंड ईच ऑफ देम हैव डिफरेंट एस्पेक्ट्स टू टेल अबाउट. For example, Samhitas are mostly about hymns. Then we have Brahmanas, the kind of explanation of those hymns. Aranyakas, they talk about, at times Aranyakas also talk about medicine. They also talk about rituals, sacrificial rituals and so on. Upanishads, they contain about the philosophy, the core essence of the Vedas, the philosophical interpretation of the Vedas. तो इन सारी चीज़ों से क्या है? इन सारी चीज़ों से हमें exactly ना उस particular time के सोर्स का सोसाइटी क्या था, उनका परसेप्शन ऑफ रिलीजन क्या था, उनका परसेप्शन ऑफ सुपरनैचुरल बीइंग क्या था. दे यूज टू कंसिडर नेचर एज समथिंग दैट वाज मच मोर सेक्रेड. तो इस तरीके की चीज़ें हम लेयर्स इससे निकाल सकते हैं रिलीजियस लिटरेचर से. ठीक है. नेक्स्ट वी ऑल्सो हैव बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट. डेफिनेटली दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ रिलीजियस लिटरेचर. वी हैव एपिक्स. एपिक्स में देर इज अ डाउट. फॉर एग्जाम्पल महाभारता को लेकर के सम से महाभारता कैन इट बी अ हिस्टोरिकल सोर्स, some say it is mythical. So again, as and when we do, we are going to cover those. Next is, इन सब को पढ़ के हमें क्या पता चलता है? We come to know about society, economy, polity, religion, moral codes. Definitely religious literature से हमें moral codes definitely पता चलता है. ठीक है, that is there. Next is secular literature. Secular literature में क्या आएगा हमारे पास? Court literature. Again, just because I have not mentioned scientific and technical works here does not mean that it is not part of secular literature. ठीक है. और मे बी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लीगल वर्क मैंने मेंशन नहीं किया है, दैट डज नॉट मीन इट इज नॉट पार्ट ऑफ सेक्युलर लिटरेचर. ठीक. सो सेक्युलर लिटरेचर में इन जनरल व्हाट कम्स इज वी हैव कोर्ट लिटरेचर, वी हैव बायोग्राफीज, वी हैव ड्रामा, वी हैव पोएट्री, ट्रैवलॉग्स. इनसे हमें क्या पता चलता है? इनसे हमें डायनेस्टिक हिस्ट्री के बारे में पता चलता है. इन डायनेस्टिक हिस्ट्री मतलब एक पर्टिकुलर, फॉर एग्जाम्पल इफ वी सी मौर्यन डायनेस्टी, तो मौर्यन डायनेस्टी में लेट अस अज्यूम दिस थिंग, पृथ्वीराज रासो. ठीक है, पृथ्वीराज रासो चांद बरदाई ने लिखा है. उसने पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान के बारे में जब उन्होंने लिखा होगा तो उसके बाद क्या है, उन्होंने उनके प्रेडेसेसर जो हैं, उनके जो सक्सेसर हैं, उनके बारे में भी मेंशन किया होगा. तो इस तरीके से क्या है, हमें डायनेस्टिक हिस्ट्री पता चलता है इससे. नेक्स्ट इज वी ऑल्सो फाइंड अबाउट आइडिया ऑफ किंगशिप, कि उस पर्टिकुलर टाइम पे फॉर एग्जाम्पल इफ समबडी इज राइटिंग अबाउट अशोका. ठीक है, अशोका का आइडियल ऑफ किंगशिप क्या था? ही कंसिडर्ड हिम अ किंग एज अ फादर टू हिज सब्जेक्ट्स. दैट वाज हिज वे ऑफ जस्टिफाइंग हिज रूल. ठीक है, उस हिज आइडियल ऑफ किंगशिप. सिमिलरली हर जो डायनेस्टी होता है उसका एक अलग आइडियल ऑफ किंगशिप होता है. आइडियल ऑफ किंगशिप मोस्टली मीन्स कि हाउ इट इज बेसिकली जस्टिफाइंग इट्स रूल, कि हम क्यों रूल कर रहे हैं, बाकी 4 लोग हैं वो रूल क्यों नहीं कर रहे हैं. दैट इज द आइडियल ऑफ किंगशिप. ठीक है, that is there. Then is ideas, culture, court politics and so on. See, I am not going to read it one by one. Please read it from here. And as you know, you don't have to take screenshot, you don't have to write. Go and follow this my Telegram channel that is Rooted by Jyoti Upadhyay. You will find the notes over there, right? Now let me just tell you about some important things. For example, if I come to this regional literature, ठीक है, very important to know about regional literature is that हमें ना जनरली जब हम मेन स्ट्रीम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वी डोंट एग्जैक्टली मतलब रीजनल लिटरेचर को बहुत बार क्या है ना कि इग्नोर कर दिया जाता है, बट रीजनल लिटरेचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जाम्पल लेट अस अज्यूम संगम लिटरेचर. अगर हमें किसी पीरियड का होलिस्टिक हिस्ट्री पता करना है तो डेफिनेटली वी हैव टू रीड अबाउट द रीजनल लिटरेचर. संगम लिटरेचर उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है. और इसलिए क्या है, संगम लिटरेचर के बारे में बार बार सदर्न इंडिया की हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं, डेक्कन का हिस्ट्री अगर हमें समझना है तो संगम लिटरेचर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स, बिकॉज मोस्ट ऑफ द नॉर्थ इंडियन टेक्स्ट दैट वर रिटन दे डू नॉट मेंशन देम इन डिटेल्स. ठीक, सो रीजनल हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद क्या है, इससे हमें क्या पता चलता है, लोकल हिस्ट्री ऑल्सो. येस, फॉर एग्जाम्पल द बुरांजीज ऑफ असम, इसमें अहोम हिस्ट्री के, अहोम जो किंगडम था उसके बारे में पता चलता है. उनके बारे में बाकी जो टेक्स्ट है उन्होंने इतना डिटेल्स में कवर नहीं किया है. सो रीजनल लिटरेचर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ लिटरेरी सोर्स. एंड अनदर इंपॉर्टेंट कैटेगरी इज फॉरेन अकाउंट्स. ठीक है, तो जब हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में हम जब फॉरेन अकाउंट्स के बारे में करेंगे, इन दैट पर्टिकुलर टाइम वी विल सी द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेन अकाउंट्स एंड द लिमिटेशंस ऑफ फॉरेन अकाउंट्स. थोड़ा सा अगर मैं बोलूँ इन ब्रीफ, फॉरेन अकाउंट्स का अगर हम देखते हैं ना तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में स्पेशली बिफोर द मौर्यस, ठीक है, बिफोर द मौर्यस ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हैं जिनके बारे में, अलेक्जेंडर्स इन्वेजन फॉर एग्जाम्पल, जिसके बारे में ना बहुत डिटेल्स में इंडियन लिटरेचर में हमें नहीं मिलता है. ठीक है, सो उसके लिए क्या है, फॉरेन अकाउंट्स, फॉरेन सोर्सेज, दैट फॉर्म अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स टू नो अबाउट
those histories. They act as a kind of, filling up of the gaps. They have their own biases, but they are also very important in forming a comprehensive history. So they are a very important historical source. ठीक है, that is there. Okay, now one thing that I had thought about saying, for example, यहाँ पे we have the opinion of Elphinstone. ठीक है, Elphinstone was a very important historian. He had commented in 1839. मतलब 1839 में उन्होंने ये चीज़ कमेंट कर रहे हैं वो, that, and the name of his book was History of India. In that, let me just read it out. He says that no date of public event can be fixed before the invasion of Alexander, and no connected relation of national transaction can be attempted until and after the Mohammedan conquests. ठीक है, इतना कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है. What he basically means to say is कि जो कॉलोनियल हिस्टोरियंस थे ना, कॉलोनियल हिस्टोरियंस बेसिकली उनका सेंस ऑफ राइटिंग हिस्ट्री वॉज डिफरेंट देन आवर सेंस ऑफ राइटिंग हिस्ट्री. मतलब हमारे हिस्ट्री, उनका हिस्ट्री राइटिंग क्या है, बहुत ज़्यादा लीनियर है, यानी कि ये इवेंट हो रहा है, ये इवेंट हो रहा है, ये इवेंट हो रहा है, इसके बाद ये चीज़ है. दैट वॉज देयर काइंड ऑफ हिस्टोरिकल सोर्स. फॉर आवर हिस्टोरिकल सोर्स हमारे पास क्या है, हमारे पास है वेदास, हमारे पास है पुराण, एंशिएंट इंडिया की अगर हम बात करते हैं. बिकॉज इसमें उन्होंने क्या बोला, ही सेड until and after the Mohammedan conquests, यानी कि उसके पहले हमने जो भी एंशिएंट इंडिया के ज़्यादातर जो लिखे हुए लिटरेरी सोर्सेज थे, इंडिया का सबसे पहला प्रॉपर हिस्टोरिकल बुक के हिसाब से अगर हम देखें तो उसको कल्हन का राज तरंगिणी माना जाता है. ठीक, तो जब मैं आगे करूँगी ना फॉरेन अकाउंट्स में, तो आई विल ट्राई टू इंक्लूड दिस कि एक हिस्ट्री बुक एग्जैक्टली होता क्या है. किसी भी लिटरेरी सोर्स को हम हिस्ट्री बुक नहीं बोल सकते. Just because the book contains historical information, that does not mean the book becomes a history book. For a book to become a proper history book, there are certain criteria that have to be followed. For example, क्या है, जो भी उसमें लिखा हुआ है उसका क्या है, उसको sources mention करने पड़ेंगे. It has to be unbiased. It has to follow a connected set of events. तो इस तरीके का इंडिया में सबसे पहले हमें कल्हन का राज तरंगिणी देखने को मिलता है. ठीक है, जो कि हमें एक कनेक्टेड हिस्ट्री ऑफ कश्मीर देता है फ्रॉम द बिगिनिंग टिल अराउंड 12th सेंचुरी एडी. ठीक, तो उसके पहले वाले पीरियड के लिए एल्फिनस्टोन ने क्या किया है, ये कमेंट किया. तो अब क्या है ना कि ये हमें समझने की ज़रूरत है कि हमारे वेदास जो हैं, भले ही वेदास में एग्जैक्टली हिस्ट्री को लीनियर फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, हिस्ट्री बुक की तरह नहीं लिखा हुआ है, बट वी हैव टू एक्सट्रैक्ट हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देयर. ठीक है, हम उसको अगर हिम्स को अच्छे से पढ़ते हैं तो हिम्स में भी क्या है, फॉर एग्जांपल ये सबसे कॉमन हिम जो बताया जाता है कि कास्ट सिस्टम के बारे में जब हम पढ़ते हैं, दैट माय फादर वाज अ फिजिशियन, माय मदर वाज अ बार्ड, ग्राइंडर ऑफ कॉर्न वगैरह इस तरीके से. तो उसमें क्या है, उसमें हमें क्या पता चलता है, वो तो एक नॉर्मल हिम है, हिस्ट्री की तरह लिखा नहीं गया है, बट उसमें हमें ये पता चलता है कि व्हेन द पर्सन हु इज राइटिंग द हिम, ही इज सेइंग माय फादर इज अ फिजिशियन एंड मे बी माय मदर इज अ ग्राइंडर ऑफ कॉर्न. सो इन दैट इट मीन्स व्हाट कि देयर वाज इन दिस कास्ट को एज सच हम अगर बोलते हैं तो इनिशियली इट वॉज ऑन द बेसिस ऑफ कलर, देन इट बिकेम ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन. तो इसमें देयर वाज ये कास्ट हायरार्की जो था वो इतना ज़्यादा रिजिड नहीं था ऋग्वेदिक पीरियड में. इस तरीके का इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से पता चल रहा है, बाय इंटरप्रेटिंग दीज हिम्स इटसेल्फ. राइट, सो दीज कॉलोनियल हिस्टोरियंस एट टाइम्स, मतलब in the 19th century exactly, तो इस बिकॉज ही मेड दिस कमेंट इन 1839. ठीक है, तो उस टाइम पे जिस तरीके से हम हिस्टोरिकल सोर्सेज को समझते थे, जिस तरह से हम हिस्ट्री बुक्स को पढ़ते थे, दैट वाज अ लिटिल डिफरेंट. एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ मूविंग फॉरवर्ड, यू नो, कि हम नए तरीके से चीज़ों को सोचना सीखते हैं, नए तरीके के इंटरप्रिटेशन सीखते हैं, समझ में आ रहा है. तो हिस्ट्री ऑल्सो इज वेरी इंटरेस्टिंग, एंड सिंस आई एम अज्यूमिंग यू हैव टेकन हिस्ट्री ऑप्शनल, so definitely you must read it out of interest. अच्छे से पढ़ो, it's very interesting thing, and also it will make you a kind of a person that you will be able to understand the current affairs better. You will be able to understand the issues better. You will be able to use these knowledge in the interview, so that will set you apart, you know, from others. Not just, I'm not saying that it will make you much more better, but definitely it is going to add a kind of edge to it. ठीक है, चलो, coming back to this, so just go through this and go through these portions also where I have written exactly that how they act as a source of history. ठीक, नेक्स्ट इज लिटरेरी सोर्सेज एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री. हाँ, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लिटरेरी सोर्सेज को हम सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री की तरह कैसे यूज़ कर सकते हैं. ठीक, ये हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज क्वेश्चन इस तरीके से आ रहा है. एज आई टोल्ड यू कि वो क्वेश्चन मैंने बताया ऑलरेडी पढ़ के अभी शुरू में PYQ, कि किस तरीके से हमें मेरिट्स ऑफ आर्कोलॉजिकल सोर्सेज एंड लिमिटेशंस ऑफ लिटरेरी सोर्सेज पे ज़्यादा फोकस करना था. ठीक है,
तो इस तरीके की चीज़ें हम देखते हैं. सो लेट अस सी अबाउट how we can use literary sources as sources of history. So the first thing they say is not only facts, literary sources, they give us not only facts but also tell us about the spirit of the age, that is how people lived, their beliefs, social norms and customs. तो ये कंपैरिजन जनरली वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के संग हम कर रहे हैं. तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या है ना, जनरली हमें फैक्ट्स देते हैं, ठीक है. और फैक्ट्स भी क्या होता है, जनरली फ्रेगमेंटेड होता है. फॉर एग्जांपल अशोका के इंस्क्रिप्शंस, अशोका के कुछ आइडियल्स, कुछ पॉलिसीज, धम्मा के बारे में उस पर लिखा हुआ है, बट कोई एग्जैक्ट कनेक्शन नहीं है. लेकिन सिमिलरली अगर उस टाइम पे फॉर एग्जांपल हम अर्थशास्त्र देखें, अर्थशास्त्र में क्या है, स्टेट क्राफ्ट को अच्छे से दिया हुआ है, टैक्सेशन को अच्छे से मेंशन किया हुआ है, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द किंग को अच्छे से मेंशन किया हुआ है, ठीक है. तो इस तरीके से क्या है, ऑल्सो इफ यू सी अदर बुक्स जो फॉर अर्थशास्त्र तो हमारे पास स्टेट क्राफ्ट एंड इकोनॉमी पे फोकस करता है. सिमिलरली देयर आर अदर बुक्स ऑल्सो दैट फोकस, फॉर एग्जाम्पल वी हैव मुद्रा राक्षस, विशाखा दत्ता का मुद्रा राक्षस, दैट फोकस ऑन सर्टन एस्पेक्ट्स, ठीक है. वो एक लिटरेरी सोर्स है सिमिलर टाइम पीरियड का. तो इससे क्या होता है ना कि इसको जब हम पढ़ते हैं तो हमें स्पिरिट ऑफ द एज, मतलब उस टाइम के सोसाइटी के बारे में और ज़्यादा डिटेल्स में लिखा हुआ मिलता है, इकोनॉमी के बारे में, स्टेट क्राफ्ट के बारे में, बेसिकली आर्ट एंड क्राफ्ट इन्फ्लुएंस. तो इन सब चीज़ों के बारे में क्या है, हमें और अच्छे से डिटेल्स में जानने को मिलता है. सो आर्कियोलॉजी मोस्टली गिव्स अस काइंड ऑफ फैक्ट्स. Literary sources contain the spirit of the age. I told you even oral history are part of literary sources. So songs, when you say, for example, stories, songs, oral histories, they actually also they are very important and they convey the spirit of the age much better compared to archaeological sources. ठीक है. Next is continuity of records. Archaeology gives broken pieces, but literature gives a language, literature gives a long chain of memory. जो मैंने बताया कि फॉर एग्जाम्पल अशोका के इंस्क्रिप्शंस वो क्या है, वो हमें धम्मा के बारे में हमें फ्रैगमेंट्स एंड बिट्स में देखने को मिल रहा है. बट उसी को अगर कोई बुक के फॉर्म में लिखा होता तो वो क्या होता, और ज़्यादा डिटेल्स में और ज़्यादा कंटिन्यूटी के संग वो चीज़ लिखा गया होता, ठीक है. दैट इज दैट. नेक्स्ट इज इट टेल्स अस अबाउट आइडियाज एंड बिलीव्स ऑफ द पीपल. फॉर एग्जाम्पल इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है भक्ति एंड सूफी लिटरेचर. इफ़ यू सी अबाउट भक्ति एंड सूफी लिटरेचर, इसमें क्या है ना, इसमें हमें लोगों के बेसिकली उस टाइम के इमोशनल, वी कैन से अबाउट दिस इमोशनल कनेक्शन और बेटर काइंड ऑफ डिवोशन, कि लोगों के डिवोशन का आइडिया कैसा था, व्हाट वाज देयर आइडिया ऑफ डिवोशन, बिकॉज इट वाज चेंजिंग. Bhakti, before the emergence of this Bhaktism and also this Sufism, वहाँ पे क्या है, ब्राह्मणिकल डोमिनेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था. सो व्हेन ब्राह्मणिकल डोमिनेंस इंक्रीज्ड अ लॉट एंड देयर वाज अ राइज ऑफ रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट्स एंड भक्ति लिटरेचर वाज रिटन. तो ये हमें क्या देता है, उस टाइम के आइडिया अबाउट कास्ट, आइडिया अबाउट गॉड, हाउ इट इज़ चेंजिंग अमंग द पीपल. ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिल रही है, हमें भक्ति लिटरेचर से मिल रहा है, सूफी लिटरेचर से मिल रहा है, जो कि उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से हो सकता है हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में ना देखने को मिले, राइट. दैट इज देयर. ओके. नेक्स्ट इज इट हेल्प्स अस नो एंड अंडरस्टैंड रीजनल एंड लोकल कल्चर्स. ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, संगम पोएम्स, बुरांजीज ऑफ असम. नेक्स्ट इज एवरीडे लाइफ ऑफ सोसाइटी, जटाका स्टोरीज, धर्मशास्त्र. ये सब क्या करते हैं, धर्मशास्त्र, जटाका स्टोरीज. अच्छा, धर्मशास्त्र, धर्म मतलब रिलीजन नहीं होता है, धर्म मतलब होता है ड्यूटी, ठीक है. आस्था इज मोर काइंड ऑफ, आस्था को अगर हम ट्रांसलेट करेंगे तो शायद हम रिलीजन बोल सकते हैं, बट एग्जैक्टली दीज आर इंग्लिश वर्ड्स. जैसे रिलीजन एक इंग्लिश वर्ड है, ठीक है, तो उसका एग्जैक्ट इंडिया में अगर हम ट्रांसलेशन ढूंढने की कोशिश करें, सो वी माइट नॉट फाइंड इट. फॉर एग्जाम्पल पहले क्या है, लोग रिलीजन को धर्म बोलते थे, ठीक है, धर्म के संग एसोसिएट करते थे, बट दैट इज नॉट ट्रू. धर्म है हमारा ड्यूटी, आस्था को हम बोल सकते हैं बिलीफ, रिलीजन, इस तरीके से, ठीक है. सो जटाका स्टोरीज हो गया, धर्मशास्त्र हो गया, ये सब क्या है, ये हमें सोशल नॉर्म्स वगैरह के बारे में, एवरीडे लाइफ एंड सोसाइटी के बारे में बताते हैं. नेक्स्ट इज हेल्प्स इन रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज. वेरी इंपॉर्टेंट कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से हमें सारा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है. तो हमें अगर पूरा एक पर्टिकुलर, लेट अस अज्यूम कि हमें अगर एंशिएंट इंडिया का कनेक्टेड हिस्ट्री पढ़ना है, एक लिखना है, सो वी कैन नॉट जस्ट डू इट ऑन द बेसिस ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, वी ऑल्सो कैन नॉट डू इट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ लिटरेरी सोर्सेज. वी हैव टू टेक बोथ इन टू अकाउंट टू फॉर्म अ कनेक्टेड हिस्ट्री, राइट. दैट इज अनदर इंपॉर्टेंस ऑफ लिटरेरी सोर्सेज. नेक्स्ट इट प्रोवाइड्स आइडियाज अबाउट क्रॉनिकल्स एंड डेट्स. अच्छा, यहाँ पे क्या है, कलहन के रास्ता रंगीनी के बारे में मैंने बता दिया, कि कनेक्टेड हिस्ट्री ऑफ कश्मीर.
यहाँ पर क्या है, लेटर फॉर एग्जाम्पल पुरानास जब हम नेक्स्ट वीडियो में पुरानास एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री पढ़ेंगे, जिस पे क्वेश्चन भी आ चुका है, तो पुराण जो है ना, हमारे पास टोटल 18 पुराण है, उसमें से सारे पुराण जो हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है ऐसा नहीं है, बट मेजरली जो पुराण्स हैं उनको 5 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। एंड यूजुअली लेटर पुराणास का जो 5th पार्ट है दैट इज़ मोर अबाउट डायनास्टिक हिस्ट्री, मतलब कि वो जिस पीरियड के बारे में बता रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड, इन सारी चीज़ों के बारे में जब वो बता रहे हैं तो उस टाइम पे वो किसी राजा का मेंशन कर रहे हैं, उसके डायनेस्टी का मेंशन कर रहे हैं, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, इस तरीके से। तो थोड़ा बहुत हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन हमें वहाँ से भी देखने को मिलता है। कहाँ पे है ये इन्फॉर्मेशन? उपिंदर सिंह में, ठीक है। नेक्स्ट इज फॉरेन अकाउंट्स, दे गिव आउटसाइडर्स पर्सपेक्टिव, ये तो फॉरेन अकाउंट्स का भी मैंने बता दिया। कल्चर एंड साइंस, वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल सुश्रुत, ठीक है, सुश्रुत संहिता, चरक संहिता, ये मेडिसिन के बारे में बात करते हैं, सर्जरी के बारे में बात करते हैं। तो जब हम मेडिसिन एंड सर्जरी के बारे में बात कर रहे हैं, जितना अच्छे से एक टेक्सचुअल सोर्स, एक रिटन सोर्स, लिटरेचर हमें समझा पाएगा, उतना अच्छे से आर्कियोलॉजिकल सोर्स हो सकता है ना समझा पाए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम नाट्य शास्त्र की बात करें भरत मुनि का, तो भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है ना, दैट कंटेन्स अबाउट, फॉर एग्जाम्पल भरतनाट्यम के बारे में है, उसके पोजेस के बारे में है, क्लासिकल म्यूजिक के बारे में है। अब क्या है कि चिदम्बरम में देयर इज अ टेम्पल, इन दैट टेम्पल ऑल्सो भरतनाट्यम पोजेस को बना के दिखाया गया, ठीक है। पोजेस को एग्जैक्टली पोज की तरह स्कल्पचर करके वहाँ पे दिखाया गया है, और नीचे पोजेस के नाम्स वगैरह जिस तरीके से मेंशन है भरतनाट्यम के। सो वो क्या है, उतना डिटेल्स में नहीं बता रहा है हमें अबाउट एग्जैक्टली द मुद्रास, अबाउट मे बी जो भी होता होगा, मतलब डांस में डिटेल्स, उतना हमें उसके बाद उससे स्कल्पचर से हम उतना ज़्यादा मेकआउट नहीं कर सकते हैं जितना ज़्यादा हम हो सकता है उसके बारे में नाट्य शास्त्र में पढ़ के उसको अंडरस्टैंड कर सके। समझ में आया? सो मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, म्यूजिक, आर्किटेक्चर, हाँ आर्किटेक्चर के बारे में भी हमें लिटरेरी सोर्सेज से पता चलता है, बट आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट कितना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस थे इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर, उसका फिर बेस्ट सोर्स क्या होगा? उसका बेस्ट सोर्स डेफिनेटली होगा अबाउट आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट्स दैट वर क्रिएटेड। फॉर एग्जांपल वी हैव होयसालास के टाइम पे जो हमें आर्किटेक्चर देखने को मिल रहा है, जिस तरह के टेम्पल्स बिल्ड हुए हैं, एक्सेलेंट टेम्पल्स, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों का रेलेवेंस है, लिटरेरी सोर्स का भी रेलेवेंस है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज का भी रेलेवेंस है। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू लिमिटेशंस, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। हमें जैसे मेरिट्स भी याद रखना है वैसे हमें लिमिटेशंस भी डेफिनेटली याद रखना है, ठीक। तो लिमिटेशंस में क्या है? एज आई टोल्ड यू द फर्स्ट वन, दैट इज इट वाज बाय द एलिट्स, सो बिकॉज जनरली सबऑर्डिनेट एंड मार्जिनलाइज सेक्शन को नॉलेज, एक्वायरिंग ऑफ नॉलेज, डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज, इन सारी चीज़ों से एंशिएंट इंडिया में मोस्टली दूर रखा जाता था, ठीक है। सो एक हो गया, देयर इज एन एलिटिस्ट बायस। सेकेंड इज इट इज़ रिटन मोस्टली बाय द अपर क्लास मैन एंड फॉर द अपर क्लास मैन, ये भी मैंने बता दिया। नेक्स्ट इज एट टाइम्स इंफॉर्मेशन ऑन सोसाइटी, कल्चर, पॉलिटी आर नॉट डायरेक्टली प्रोवाइडेड। एग्जैक्टली, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पुरानास की बात करें, वेदास की बात करें, डायरेक्टली हमें हिस्ट्री नहीं पता चलता है, हमें उसको पढ़ के हिस्ट्री इंटरप्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज वन थिंग। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सम टेक्स्ट्स आर मच ओल्डर देन देयर मैन्युस्क्रिप्ट्स, मतलब कि हो सकता है कि उनको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंपोज किया गया है, ठीक है, लेकिन लिखा उनको बाद में गया। जैसे कि मान लो कि लेट अस अज्यूम वेदास, ठीक, वेदास को ऐसा मानते हैं कि ऋग वेदा सबसे एंशिएंट वेदा मानते हैं, बाकी वाले वेदास जो हैं उसको मानते हैं कि वो बाद में लिखा गया था। तो हो सकता है कि बाकी के जो वेदास हैं उसमें कुछ कुछ एडिशंस, इंटरपोलेशंस ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम किया गया, या धर्मशास्त्र हो गया, स्मृति लिटरेचर हो गया, लेट अस अज्यूम कि उसमें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिफरेंट एजेस में, डिफरेंट पीरियड्स में उसको ओरली पास ऑन किया गया है फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर, उसमें चेंजेस हुए हैं, बिकॉज एज नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हमें 2-4 लाइन हम भूल ही सकते हैं, ठीक है, अगर वो लिखा हुआ नहीं है। सो मैंने क्या किया कि मैंने अपना कुछ बना करके उसमें डाल दिया एंड आई पास इट ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन। सो व्हाट हैपन्स इज कि दे वेर एट टाइम्स द टेक्स्ट, एज आई टोल्ड यू, टेक्स्ट इज नॉट जनरली रिटन थिंग, इट इज अ कॉम्पोजिशन ऑफ वर्ड्स। सो एट टाइम्स द टेक्स्ट इज मच has been composed over a longer period of time and is much more older compared to the manuscript. So ये हमें किस किस एज में उसको कंपोज किया गया है, उस एज में क्या सोशल कंडीशंस थे, पॉलिटिकल कंडीशंस थे, ये हमें थोड़ा बहुत लेयर्स जानने की ज़रूरत है ताकि हम अच्छे तरीके से उस मैन्युस्क्रिप्ट को समझ पाएँ, ठीक है। दैट इज़ देयर। नेक्स्ट इज इंटरप्रिटेशन, स्टाइल, लैंग्वेज। अच्छा, वन मोर थिंग इज कि
आई थिंक आई हैड मिस्ड आउट अबाउट, जब मैंने उसका ना मेरिट्स बोला, तो लिटरेरी सोर्सेज को क्या है कि लिंग्विस्टिक स्टडी में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है लिटरेरी सोर्सेज, ठीक है. सो आई थिंक आई मिस्ड आउट दिस इंफॉर्मेशन अबाउट लैंग्वेज, ठीक है. लिंग्विस्टिक की अगर हम बात करें, लिंग्विस्टिक या फिर हाँ लिंग्विस्टिक स्टडीज़ जो है, एवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेजेस वगैरह, उसमें हमें लिटरेरी सोर्सेज हेल्प अस अ लॉट, ठीक. डेफिनेटली दे ऑल्सो हेल्प, आर्कोलॉजिकल सोर्सेज ऑल्सो हेल्प, बट लिटरेरी सोर्सेज भी उसमें हेल्प करते हैं. नेक्स्ट इज सम आर हाईली बायस्ड, स्पेशली बायोग्राफीज रिटन बाय कोर्ट पोइट्स. लेट अस अज्यूम कि बाणभट्टा का हर्षचरित, ठीक है. अब मान लो कि समबडी इज गिविंग यू द मनी टू राइट अबाउट देम, सो आप उनके बारे में जनरली बुरा बुरा नहीं लिखोगे, आप जनरली क्या करोगे, उनके बारे में थोड़ा अच्छा लिखने की कोशिश करोगे, ठीक है. यू विल मे बी ओमिट आउट द, मे बी देयर आर सम वॉर इन विच दे हैड लॉस्ट, तो आप उसके बारे में मेंशन ही नहीं करोगे. या हो सकता है किसी वॉर में वो लड़े और लड़के उनको एक राजा को हराया, आपने क्या किया वहाँ पे लिख दिया कि नहीं नहीं एक राजा को नहीं 3 राजा को एक संग हराया था. तो इस तरीके से क्या है, देयर आर ऑल्सो मच सम बायसेस, ठीक है. तो एग्जैक्ट हम उसको हिस्ट्री की तरह नहीं ले सकते, हमें उसको केयरफुली पढ़ना पड़ेगा, दैट इज देयर. Next is some are works of not one but many authors. Very important to know about this because हर ऑथर का क्या होता है ना, हर ऑथर का एक अपना सोचने का तरीका होता है, एक अपना बायस होता है. लेट अस अज्यूम कि एक चीज़ है, अब आई एम गिविंग अ वेरी बेसिक एग्जांपल. लेट अस अज्यूम अ बुक हैज़ बिन रिटन, half of the book has been written by a male and half of it has been written by a female scholar. तो उसमें मेल स्कॉलर एंड फीमेल स्कॉलर के लिखने में हल्का हमें या तो पर्सपेक्टिव का डिफरेंस देखने को मिल सकता है. तो इस तरीके से लेट अस अज्यूम कि हमारे पास कोई लिटरेरी सोर्स हमें मिला है, रिटन सोर्स हमें मिला है, जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंपोज किया गया है एंड सेवरल पीपल हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड टू इट्स कॉम्पोजिशन. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट हु दीज पीपल वर, वॉट वॉज देयर बैकग्राउंड, लाइक जेंडर, ताकि हम उसके बायसेस वगैरह को है उसको हम आइडेंटिफाई करके उसको साइड कर सकें, ठीक है, एंड नॉट टेक इट एज एक्चुअल हिस्ट्री. नेक्स्ट इज मेनी टाइम्स एंशिएंट टेक्स्ट्स आल्सो कंटेन मिथ एंड यस, मिथ्स बहुत बार होता है ना, मिथ से भी हमें हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन जानने को मिलता है. फॉर एग्जांपल उस टाइम मिथ में उस टाइम के आइडियाज़ जानने को मिलते हैं, उनके क्रिएटिव आइडियोलॉजीज जानने को मिलते हैं, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मिथ एंड हिस्ट्री, ठीक है. तो टेल अस हिस्ट्री डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बट मिथ एंड हिस्ट्री आर नॉट द सेम, और इसको भी हमें आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है टू मेक बेस्ट यूज ऑफ लिटरेरी सोर्स एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री, राइट. सो दिस इज अबाउट लिटरेरी सोर्सेज. इतना अगर आपने लिटरेरी सोर्सेज का समझ लिया है तो आप जैसे PYQ मैंने बताया वैसा PYQ आप लिख सकोगे, ठीक है. ओके, and no topic is complete without knowing the important historians, those that are associated with the topic. So इसमें क्या है, इसमें we have to know about the view of रोमिला थापर, DD कोशाम्बी, RS शर्मा, अल बरूनी एंड उपिंदर सिंह, ठीक है. तो रोमिला थापर फॉर एग्जाम्पल, स्कूल्स ऑफ हिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं, हिस्टोरियोग्राफी की एक वीडियो मैं लाऊंगी हिस्टोरियोग्राफी के ऊपर, उसमें हम देखेंगे कि अलग अलग हिस्टोरियंस, कॉमन हिस्टोरियंस जिनके बारे में हम बार बार पढ़ते रहते हैं, वो एक्जैक्टली किस स्कूल को बिलोंग करते हैं. फॉर एग्जांपल रोमिला थापर, शी इज़ कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ मार्क्सिस्ट स्कूल, ठीक है. यानी कि जब वो किसी इवेंट को देखती हैं, वो किसी चीज़ को देखती हैं, तो शी सीज इट मोर फ्रॉम अ सोशल पर्सपेक्टिव, मोर फ्रॉम अ क्लास स्ट्रगल पर्सपेक्टिव, फ्रॉम एन इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल उनका इंटरप्रिटेशन अबाउट द राइज ऑफ प्रोटेस्टेंट सेक्ट्स इन 6th century BC. As we move on, we are going to read about that also. So what she does is कि वो बोलती है कि one of the main reasons for the rise of these heterogeneous sects like Jainism, Buddhism, it was urbanization, ठीक है, economic changes that happened in the society. तो वो उनका जनरली पर्सपेक्टिव होता है, बिकॉज शी इज़ अ मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन, उनका जनरली ऐसा ऑब्जर्वेशन होता है, ऐसा पर्सपेक्टिव होता है टू राइट एंड सी हिस्ट्री, ठीक है. ओके, आगे देखते हैं. तो यहाँ पे रिलेटिंग टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक यानी कि सोर्सेज टॉपिक में वो क्या बोलती हैं, शी सेज that epics and Puranas are not to be read literally. Definitely, because मैंने बोला कुछ उसमें मिथ हो सकता है, कुछ बहुत सारे लोग उसमें कंपोज कर रहे हैं, तो उनके बारे में भी हमें जानना ज़रूरी है. दे आर लेयर्ड टेक्स्ट विच रिफ्लेक्ट द चेंजिंग सोशियो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है. तो डायरेक्टली हम ऐसे नहीं है, बट हम जब आंसर लिख रहे हैं हमें इनका नाम यूज़ करना है, जो भी हिस्टोरियन आपको सही लगे, टू सब्सटैंशिएट, और व्हाट आई मीन इज बेसिकली टू support what you are writing in the answer, ठीक है. Next is DD Koshambi. He says he sees literary sources as survival texts. Survival text basically means कि
कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली वो क्या करते हैं, वो हिस्ट्री अपने आप में कंटेन करते हैं। एंड यहाँ पे एंशंट इंडिया के लिटरेरी सोर्सेज की मोस्टली वो बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल वेदास डायरेक्टली हिस्ट्री नहीं लिखते हैं या हिस्ट्री बुक के हिसाब से नहीं लिखा गया है, लेकिन दे कंटेन इनडायरेक्टली, दे डेफिनेटली कंटेन हिस्ट्री, ठीक है। सो कॉन्शियसली प्रिजर्व ट्रेसेस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक लाइफ एंड सो ऑन। आर एस शर्मा ने क्या किया है, आर एस शर्मा ही यूज्ड स्मृतिज, पुराणाज एंड एपिक्स टू रिकंस्ट्रक्ट एग्रेरियन एंड कास्ट स्ट्रक्चर्स। बेसिकली उन्होंने क्या किया है, ही हैज़ यूज्ड स्मृतिज, पुराणाज, एपिक्स टू राइट अबाउट एग्रेरियन लाइफ, राइट ऑफ दिस फ्यूडलिज्म, एंशिएंट इंडिया में फ्यूडलिज्म था या नहीं था, इन सब चीज़ों पे आर एस शर्मा ने काम किया है, ठीक है। तो इन्होंने जो काम किया है, ही हैज़ यूज्ड द लिटरेरी सोर्सेज। ये जो लिटरेरी सोर्सेज के बारे में हम बोल रहे हैं, इसको हम आंसर में कैसे यूज़ कर सकते हैं। जब हम लिख रहे हैं ना कि लेट अस अज्यूम हमें आंसर में ऐसा कोई पार्ट है जिसमें हमें लिखना ये पड़ा कि भले ही इंडिया में हमें एग्जैक्ट हिस्ट्री बुक के हिसाब से नहीं मिलता है, बट वी फाइंड दीज लाइक स्मृतिज, पुराण, एपिक्स, उनको भी हम हिस्ट्री सोर्स की तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फुल स्टॉप। फॉर एग्जाम्पल आर एस शर्मा ने इन बुक्स को यूज़ किया है टू राइट अबाउट द एग्रेरियन स्ट्रक्चर और टू राइट अबाउट द कास्ट स्ट्रक्चर इन एंशिएंट इंडिया, ठीक है। इस तरीके से इनको हम इंक्लूड कर सकते हैं आंसर में। अल बरूनी फॉर एग्जाम्पल, अल बरूनी ही वॉज अ काइंड ऑफ फॉरेनर हु हैड कम टू इंडिया। तो वो क्या बोल रहा है, और अल बरूनी ही इज सेइंग कि इंडिया के जो लिटरेरी टेक्स्ट हैं वो बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड हैं, बट स्टिल ही केम टू नो अबाउट इंडियन एस्ट्रोनॉमी, इंडियन मेडिकल साइंस बाई रीडिंग दोज बुक्स इटसेल्फ, ठीक है। एंड देन फाइनली वी हैव उपिंदर सिंह, मॉडर्न हिस्टोरियन। पहला जो वीडियो था उसमें मैंने बताया था अबाउट प्राइमरी सोर्सेज, सेकेंडरी सोर्सेज एंड टर्शियरी सोर्सेज, ठीक है। तो उसमें उपिंदर सिंह को मैंने बताया था एज कि किस तरीके का सोर्स हम ले सकते हैं, ठीक है। गो एंड सी दैट वीडियो फॉर फाउंडेशनल, टू बी क्लियर अबाउट फाउंडेशंस, ठीक है। तो उपिंदर सिंह को हम मॉडर्न हिस्टोरियन की तरह कंसिडर करते हैं। एंड उपिंदर सिंह जो है, शी इज सेइंग कि स्ट्रेसेस ऑन कंबाइनिंग लिटरेरी, एपिग्राफिक एंड आर्कियोलॉजिकल एविडेंस फॉर अ बैलेंस्ड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पास्ट। तो वो ये बोलती हैं कि अगर हमें पास्ट के बारे में जानना है तो हमें सिर्फ एक सोर्स पे भरोसा करके हम नहीं जा सकते हैं, हमें तीनों को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। लिटरेरी सोर्स, एपिग्राफिक एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्स का ही पार्ट है एपिग्राफिक सोर्सेज, मोस्टली अबाउट इंस्क्रिप्शंस एंड ऑल। तो इन सबको हमें साथ में लेके एक हिस्ट्री बनाना है, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। Check out the description. I have started two courses. One is mentorship course, since I was getting a lot of emails as well as a few comments that about courses and about answer writing. So if you want to send your answers to me so that I can evaluate them, I'll be more than happy to do that. So there are two, as well as if you want to directly have a communication with me as such in mentorship, so that also you can go and see in the description. I have mentioned about that, okay. And about me, I have been a faculty for considerable number of years in a reputed coaching institute in Eastern India. So, and also I have passed my masters from Jadavpur University, that is in Kolkata. And yes, I have been a rank holder throughout. So you are in the right hands. It's not just another random YouTube channel, right? So it's serious business here for serious students. Thank you so much. I hope you found it helpful, and do leave your feedback in the comment section. Thank you.